वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़ मिल बैठण का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियां पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की रहमत का सदका गुरु के चरणों में जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का यतन कर रहे हैं। कबीर साहब बंदे वालों बनाइया होइयां सो कॉल्ड कथा कथित रीतां जिन्हां दा धर्म नाल कोई वाह वास्ता नहीं हुंदा ते सिर्फ मनौतां हुंदियां फोकियां, उन्हां दे संबंध विच कबीर साहब कहंदे ने कि इन्हां दा कोई लाभ नहीं है। इन्हां नूं जिन्नी छेती बंदा त्याग देवे उन्नी छेती ही उन्हें सुख हासिल हुंदा है। अज दा एक कबीर साहब का उचारण किया होया शब्द कबीर साहब दे वेले जो हालात सन जां उस वेले जदों लोग बेअंत तरह के पखंडां बेअंत तरह के कर्म कांडां विच उलझे हुए सन, जिथे किसे थां नूं चंगा ते किसे थां नूं माड़ा गिणिया जांदा सी, जिथे सिर्फ पानी विच नहा लैण नाल ही समझ लिया जांदा सी कि बंदे दे पाप कट्टे गए, जिथे कबीर साहब वर्गियां रब्बी रूहां नूं नीच गिणिया जांदा सी, नीवीं जात दे गिणिया जांदा सी। उस समाज विच उस वक्त कबीर साहब ने जो क्रांतिकारी काम किया है उहदी मिसाल किते होर नहीं है। क्योंकि उन्होंने उस शहर विच रह के उस जगह रह के जिथे इन्हां कर्म कांडां दा बड़ा बोल बल है उत्थे ही इन्हां दे खिलाफ आवाज उठाई। बनारस सनातन धर्म का बड़ा पुरातन तीर्थ स्थान जिथे लोग पहुँचते हैं वड्डी गिणती विच यात्रा करन लई इशनान करन लई। बनारस उत्थे उन्ने लोग नहीं वसदे जिन्ने उत्थे मंदिर ने, ते बनारस नूं शिवजी दी नगरी कहंदे ने कि शिवजी दी नगरी है बनारस कांची। ते उस बनारस दे संबंध विच ये गल कही गई है हिंदू सनातन ग्रंथां दे विच कि जिहड़ा बंदा बनारस विच मरेगा, बनारस विच जिस बंदे दी मौत होवेगी कांची दे विच, वो बंदा मुक्त होवेगा, स्वर्ग नूं जाएगा। इसलिए फिर लोग अपना समुच्चा जीवन अपने पिंडां नगरां विच देश दे वख-वख इलाकिਆਂ विच जिथे वो जम्मे पड़े सन उत्थे जिउंदे सी, ते जदों बुढ़े हो जाते सन, जदों लगता सी कि हुण मौत का कोई पता नहीं, उदों लोग कांची विच चले जाते सन, बनारस चले जाते सन।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। ਕਾਂਛੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਗਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਹਰ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਬ ਕਹੋ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। हे राम, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਜੀਲੇ ਬਨਾਰਸ, ਬਨਾਰਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਬਨਾਰਸ, ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜੀਲੇ ਬਨਾਰਸ ਮੱਤ ਪਈ ਥੋੜੀ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਛੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਬੀਰ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਨੇ, ਝੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਂਛੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਾਟ ਨੇ। ਉਹ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ।
शूद्र तो पढ़ना तो दूर की गल, वो नेड़े भी नहीं जा सकता। ख्याल रखना कि कबीर साहब वो नीच जात नाल संबंध रखते हैं, इसलिए उन्होंने पढ़ाने वाला कोई भी नहीं कि किहदे कोलों पढ़नगे। पर कबीर साहब उन्हों की तुसीं बाणी पढ़ोगे, उन्हों की बाणी दे विच तुहानूं फारसी के शब्द भी मिल जाएंगे, उन्हों की बाणी विच हिंदी के शब्द भी मिल जाएंगे, उन्हों की बाणी विच होर भाषा भी मिल जाएगी, उत्थों की जिहड़ी साधुओं की भाषा सधूकड़ी कहते जिन्हों, वो भी मिल जाती। बेशक उन्होंने वेदां नूं पढ़न का अधिकार नहीं सी, पर वेदां दे विच की है कबीर साहब की बाणी च भी पता लग जाता है। इसलिए ब्राह्मण ने सारा कुछ ये कर रखा सी कि ओदा ही खाण पीण का बंदोबस्त हमेशा बनया रहे। तो कबीर साहब ने इस गल नूं चैलेंज किया है कि भाई जे सचमुच ऐसा है, जे सचमुच ये गल सच है कि बनारस विच मरण नाल बंदा सीधा स्वर्ग जाता है, मुक्ति मिलती, तो कबीर साहब कहते फिर मैं ये मुक्ति नहीं चाहता। वो कहते मैं इहो जी मुक्ति नूं लत्त मारना। तो उन्होंने ऐसा किया, वो मगहर विच आ गया, जिन्हों पंडित कहता है कि मगहर विच मरण नाल नरक जाना पवेगा। कबीर साहब कहते मैं नरक जाण नूं तैयार, पर मैं कांछी विच नहीं मरना, क्योंकि जे मैं कांछी विच मरिया तो भुल भुलेखे मैं जे मुक्त हो गया तो लोग आखणगे कि कबीर कांछी विच रहिंदा सी तां मुक्त होया। लोग ये कहणगे। इसलिए कबीर साहब ने अपने आप नूं बामण दियां बनाईयां होईयां सो कॉल्ड कथा कथित धारणा नालों तोड़ लिया, क्योंकि तोड़ना ही बनता सी, इस तो इलावा कुछ होर नहीं सी हो सकता। क्योंकि जे वो उत्थे रहिंदे, उत्थे रह के इस गल का विरोध करते तो किसी ने उन्होंने गल ते यकीन नहीं सी करना, क्योंकि बाद में कई तरह दी कहानियां बना लिया जांदियां, कई तरह दी गल्लां घड़ लिया जांदियां। बाद में जदों प्राणी इस दुनिया तो चलिया जाता है तो कई तरह दी गल्लां बना लिया जांदियां ने, कबीर साहब नाल भी बना लिया जानियां सन। इसलिए कबीर साहब ने तो बनाई भी, कबीर साहब ने मैं यूट्यूब के उत्ते मगहर के संबंध में कल बहुत वीडियो देखिया ने, उत्थों के लोग अज तुसीं उन्होंने पूछो कि कबीर साहब मगहर क्यों आए सी। कबीर साहब मगहर दी एक मगहर विच एक उन्हां दी कबर बनी है, एक उन्हां दी समाध बनी है। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि गुरु नानक साहब महाराज जी दे नाल जो वापरिया, कबीर साहब नाल भी उही घटना जुड़ी है कि कबीर साहब का शरीर नहीं मिलिया, एक घटना उन्हां नाल भी जुड़ी है। मगहर दे विच एक पासे कबर बनी है तो एक पासे समाधि बनी हुई है। ये बड़े झमेले ने ये, पर इको जी घटना कई साधुओं नाल जुड़ी हुंदी है। खैर, मगहर दे लोग उन्होंने पूछो कि कबीर साहब इत्थे क्यों आए सी। कबीर साहब दी जिथे समाधि बनी है, हुण देखो सारी जिंदगी पंडित का विरोध करते रहे कबीर साहब, तो कबीर साहब की समाधि ते पंडित ही बैठा जे। सारी जिंदगी कबीर साहब ने उहदा विरोध किया कि तू लोगों को ठगना, तो मरण तो बाद कबीर साहब के थां ते फिर लोगों को ठगण लई उही बैठा है, जिस चीज का कबीर साहब विरोध करते सी। तो वह की कहंदा है, उत्थे बैठा मौजूद पंडित वह की कहंदा है, वह कहंदा है कि कबीर साहब इत्थे आप नहीं आए, उन्होंने लिआंदा गया। क्यों लिआंदा गया? कहंदे ने कि मगहर विच सोका पैंदा सी, काल पैंदा सी, तो लोगों ने कबीर साहब नूं बेनती की कि कबीर साहब जी तुसीं साडे नगर आओ, तुहाडे साडे इस नगर विच आउण नाल साडे इत्थे सोका पैना काल पैना बंद हो जाएगा, तुसीं इत्थे आके वसो। तां कबीर साहब इत्थे आए। हुण कबीर साहब का शब्द कुछ होर कहंदा है, उन्हों का शब्द कुछ होर कहंदा है, पर कहानी उत्थे की फैला दी गई है, उत्थे कुछ होर। मैं सोचा कि एक अद्धी वीडियो विच किसी पंडित ने झूठ बोल दिता होने, चलो होर सुन लैने आ,
कई वीडियो देखिया, कई कुछ उत्थों के बारे जानिया, तो सब ने यही कहा कि कबीर साहब नूं लोकां ने सद के लिया कि तुसीं इत्थे आके बसो, जबकि कबीर साहब के शब्द तो बिल्कुल वक्री गल करते हैं लोग, क्योंकि उत्थे ये गल फैला दी गई कि कबीर साहब तो लोगों का दुख देखा नहीं गया, इस करके कबीर साहब उत्थे आ गए, जबकि गल होर सी। गल आ जिहड़ी कबीर साहब अपने शब्द विच आप दसदे ने कि मैं इस करके मगहर विच गया सी, उत्थे कोई काल पैंदा सी जां नहीं पैंदा सी, इस गल का कबीर साहब ने अपनी बाणी विच जिक्र नहीं किया। कबीर साहब ने जिक्र किया कि लोग कहंदे ने, पंडित कहंदा है कि मगहर विच मरन नाल नरक जाना पैंदा है, कहंदे मैं इसलिए उत्थे गया, इस करके मैं मगहर विच गया। पर उत्थे गल ये फैलाई गई कि कबीर साहब लोगों का भला करने लिए आए सी। तुहानूं मैं दस्सिया ना कि यह ब्राह्मण बड़ा चलाक आदमी है, कबीर साहब के जान तो बाद उसने ऐसी गल फैला दी, क्योंकि जे वो ये दसदा कि कबीर साहब तो इस करके आए सी कि मगहर विच मर के भी मैं मुक्त हो सकदा, वो तो लोगों को यह दसन आए सी। जे कबीर साहब की यह गल लोगों को दसी जाती तो फिर लोगों ने बनारस वाले पासे नूं जाना ही नहीं सी, उन्होंने कांची वाल नूं जाना नहीं सी। इसलिए ब्राह्मण ने यह गल लोगों में फैलाई कि भाई वो तुहाडा भला करने लिए आए सी, कि लोग बड़े दुखी ने इस करके आए सन। ऐसा ही हुंदा है, साडा समाज ऐसा ही है, ये चीज़ों को अदल बदल दिंदा है। ख्याल रखना है कि इतिहास जां साखियां वो कई बारी अगे पिछे हुंदियां, उन्हां विच कई बारी मन घड़त गल्लां हुंदियां, पर गुरुआं दे भगतां दे बचन, उन्हां दी बाणी साडे कोल ओही इक्को एक आखिरी प्रमाण है। इक्को एक आखिरी प्रमाण साडे कोल उन्हां दे बचन ने, उन्हां तो ही सिद्ध होवेगा कि की सही है ते की गलत है। इसलिए कबीर साहब दे इस शब्द तो सारी गल स्पष्ट हो जाती। कबीर साहब समझाते हैं, कबीर साहब कहते हे वाहिगुरु अब कहो राम कवन गत मेरी, कि हे सच्चे पातशाह मैं मेरी मुक्ति किवें होवेगी। हुण जिवें लोकां दी गल मान लवां कि बनारस विच मुक्ति मिलती है, मैं तो मगहर आ गया, मैं तो मगहर विच आ वसिया, मेरी मुक्ति किवें होवेगी हुण मैनूं दसो। तजीले बनारस मत पई थोड़ी, मैं बनारस छड्ड दिता, मैं बनारस का त्याग कर दिता। तो लोग कहते हैं कबीर की मत थोड़ी, मत मारी गई इहदी, कि कबीर आ गया छड्ड के बनारस। कबीर साहब कहते ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, जिमें मछली पानी नूं छड्ड के पानी तो बाहर आ जावे। लोकी कहते ने कबीर पानी नूं छड्ड के बनारस नूं छड्ड के बाहर आ गया, हुण मरेगा ही है। जिमें मछली पानी तो बाहर आ गई तो उन्हें मरना ही है। क्योंकि बनारस विच रहिंदा तां इह स्वर्ग जांदा, ये बनारस नूं छड्ड के आ गया, हुणे मरेगा ही, हुणे नरक जावेगा ही। कबीर साहब कहते जो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना, कि पूर्व जन्म तो मैं तप दा हीना। पूर्व जन्म हो तप का हीना, कि तपहीन, कि मेरे को तपस्या कोई तप है ही नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि जे किसी बंदे ने तप किया होवे पिछले जन्म च तां वो बनारस विच जन्मदा है, उन्होंने बनारस विच आउणा नसीब हुंदा है। कबीर साहब कहते मैं तो तप तो हीना, तां ही तो मैं बनारस छड्ड चलिया। पूर्व जन्म पिछले जन्म तो ही मैं तप तो हीना, जे मैं तप किया हुंदा तां मैं बनारस विच क्यों ना रहिंदा। लोग आखते हैं कि कबीर ने जरूर कोई ना कोई माड़ा कर्म किया होना, पाप किया होना, इसलिए कबीर मगहर विच आ गया, इसलिए इत्थे आउणा पिया। कबीर साहब कहते जो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना, अब कहो राम कवन गत मोरी।
हे वाहिगुरू हुण दस मेरी मुक्ति किवें। हुण वेखो कबीर साहब की सीधी परमेश्वर नूं गल, वो कहंदे कि परमात्मा तू दस हुण, क्योंकि मैं तो यह समझदा है कि वाहिगुरू के नाम नाल जुड़ के मुक्ति मिलती है। दुनिया समझती है कि किसी शहर विच वसन या किसी दूसरे शहर विच ना वसन नाल मुक्ति मिलती है या नरक मिलता है। लोगों की धारणा कबीर साहब कहते ये है। हुण मैनूं तू दस कि की तेरी भगती करके मुक्ति होवेगी या नहीं होवेगी। नामदेव जी का भी एक बचन है, एक कबीर साहब का भी है। नामदेव जी कहते कि हे सच्चे पातशाह, जे मैं मर गया तो मरन तो बाद मैं मुक्त हो गया तो किसी नूं की पता लगना कि नामदेव मुक्त हो गया? कौन जानेगा? लोगों को किवें पता लगू? क्योंकि पता तो किसी का भी नहीं लगता। साधु मरे तो चाहे चोर मरे, पता तो किसी का भी नहीं लगता ना कि कौन मुक्त होया तो कौन नहीं होया। इसलिए नामदेव जी कहते कि सच्चे पातशाह आ जिहड़ी मरण तो बाद वाली मुक्ति है ना, ये मैनू नहीं चाहिए है, मैनू नहीं चाहिए। मुए हुए जो मुक्त देओगे मुक्त ना जाने कोयला। जो मरण तो बाद मुक्ति दोगे तो कौन जानेगा मुक्ति नूं। इसलिए मैं नहीं चाहता ये मुक्ति, इसलिए मैनू जिउंदे जी जीवन मुक्त करो। कबीर साहब जिउंदे जी जीवत मुक्त ही सन। ताही ते इन्ना कॉन्फिडेंस है कि जो मगहर विच भी मरे तो कोई गल नहीं। जदों अपने वाहिगुरू दे उत्ते भरोसा होवे ना, फिर नहीं किसी तरह की कोई घबराहट होंदी। जिन्होंने परमेश्वर ते भरोसा नहीं, वो बंदे कदे कांची बनारस वाल नूं मूँह चक के तुरे फिरदे ने। जिन्होंने परमेश्वर ते भरोसा नहीं, जिन्होंने वाहिगुरू ते कोई भरोसा नहीं, ख्याल रखना कि जदों कोई गुरु पीर या कोई भगत इस दुनिया तो जाता है ना, तो उन्होंने फुल, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने संबंध में तुसी घट ही सुनोगे कि उन्होंने जल प्रवाह किया गया। बहुत घट सुनोगे। क्यों? क्योंकि इनू क्यों किया जाता है? अस्थियां नूं जिहड़े फुल चुगदे हैं चिखा विचों, उन्होंने क्यों जल प्रवाह करते हैं? लोगों की धारणा यह है कि उन्होंने इस करके जल विच रोड़िया जाता है कि उसकी गति हो जाए। इसलिए कोई हरिद्वार चलिया जाता है, कोई किते चलिया जाता है, कोई किते, कि उसकी गति कराउण वास्ते कि हाँ उस बंदे नूं हुण उहदियां अस्थियां नूं जल प्रवाह कर दो, उसकी गति हो जाएगी। पर तुसीं साधुआं दे संबंध विच, पीरां फकीरां दे संबंध विच घट ही सुनोगे कि उन्हां दी अस्थियां नूं किसी पानी विच रोड़िया गया होवे। बहुत घट। जां उहनूं किते भांडे विच बंद करके जमीन विच दब दिता जांदा है, उहदे उत्ते उहनां दी याद बना दित्ती जांदी है। कुछ इस तरह नाल ज़्यादातर कीता जांदा है। कोई समाधि बना दित्ती जांदी है, पर पानी च नहीं उन्हां नूं रोड़िया जांदा। बहुत घट। कोई हो सकता है कि जिन्हों रोड़ दिता गया होवे, वो गल वखरी। क्यों? क्योंकि साधु जिउंदे जी ही मुक्त हुंदा जे, उन्होंने किसी गति की लोड़ नहीं हुंदी। गति की लोड़ आम लोगों को पैंदी है, इस करके तो लोग मुक्ति कराउंदे फिरदे ने, गति कराउंदे फिरदे ने इधर उधर। साधु नूं गतियां की लोड़ नहीं हुंदी, वो तो पहला ही गति कर चुका है, वो तो जिउंदे जी मुक्त हो गया। इसलिए वो चाहे बनारस विच मरे तो चाहे कांची विच, वो मुक्त ही है, वो मुक्त ही है। इसलिए कबीर साहब के जो तुसीं शब्द पढ़ोगे, कबीर साहब कहते चाहे लोग गंगा किनारे आ वसदे ने मरण वेले, कबीर कहते मैं गंगा का किनारा छड्ड दिता। लोग दूरों दूरों आके गंगा विच इशनान करन आउंदे सन कि गंगा विच इशनान करांगे तो पापां तो मुक्ति मिलेगी। तो कबीर साहब कहते भाई मैं आ घर दे खूह दे पानी नाल नहा लूंगा,
पर मैं गंगा में इशनान नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग आखणगे कि कबीर दे पाप तां कट्टे गए क्योंकि ये गंगा में नहाउंदा सी, ये गंगा च इशनान करता सी, इस करके। कबीर साहब कहते जे गंगा में इशनान करिया, पानी में तीर्थ में नहाया, जे इशनान करिया पाप दूर होंदे आ, तां फिर इन्ने बेअंत लोग इत्थे आउंदे ने, उन्हां दे पाप क्यों नहीं मिट गए? कबीर साहब कहते लौकी 68 तीर्थ नहाई कौड़ापन ताऊ ना जाई, कि जिहड़ा तुम्मा है उन्होंने 68 तीर्थां दा इशनान करा दो पर उहदा कौड़ापन नहीं जांदा। तां फिर मैनू ये दसो कि ये जिहड़े बंदे जिन्हां दे अंदर कड़तन है, पाप है, वो बाहरों अपने आप नूं धो लैणगे, इशनान कर लैणगे, पर अंदर दी कड़तन थोड़ी ना जांदी। जिन्हों अपने परमेश्वर ते भरोसा है वो नहीं घबराउंदा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैनू मगहर विच मरण तो भी कोई डर नहीं है। इसलिए वो कहते मैं वाहिगुरू नूं सिद्धा कहना कि सच्चे पातशाह जे लोकां दी गल मान लवां तां फिर तां मेरी गति होणों रही, फिर तां मैं कदे मुक्ति नहीं हो सकांगा। इसलिए कबीर साहब कहते अब कहो राम कवन गत मोरी, तजिले बनारस मत भई थोरी, रहाओ सगल जन्म शिवपुरी वसाया गवाया। सारा जन्म पूरा जीवन शिवपुरी मतलब बनारस कांची शिव जी की नगरी, सगल जन्म शिवपुरी गवाया, कि सारा जन्म लोकी कहते ने कि कबीर ने शिवपुरी विच गवा लिया, उत्थे लगा रहा अपने कपड़े बुन, ते हुण मरती बार मगहर उठ आया। हुण मरण का वेला आया तो मगहर वाल नूं मूँह कर लिया। लोग ये आखते ने कि हुण इस इत्थे आ गया। काशी काशी मगहर सम विचारी। कबीर साहब कहते मेरे वास्ते कांची ते मगहर ये दोनों थाहां इक्को जिहियां ही ने, मेरे लिए दोनों थाहां इक्को जिहियां ने। ख्याल रखना ये सारे धर्मां दे विच किते ना किते ये गल हुंदी है, इस्लाम विच भी है, हिंदुओं विच भी है। जिहड़ी जगन्नाथपुरी दी यात्रा निकलदी है ना, रथ दी यात्रा, रथ यात्रा, उहदे संबंध विच हिंदुओं दे विच मनौत है कि जिहड़ा बंदा उस रथ दे हेठां आके मर जावे वो मुक्त हो जाता है, कि पैरां थल्ले आके दब के मर जावे वो स्वर्ग जाता है। अज भी लोगों के विच धारणा है। इस्लाम दे विच जदों लोग हज करन वास्ते जाते हैं तां जिहड़ा उत्थे मक्के दे विच जिहड़ा संगे असवद है, जिन्हों जाके वो काला पत्थर जिन्हों मुसलमान चुमते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। तुसीं कदे भी देखना, वो लाइव भी देखने तुहानूं मिल जाएगा। वो हमेशा उहदे दुआले मुसलमान परिक्रमा करते हैं, उहदे आले दुआले परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, तो उत्थे उत्थे बहुत भीड़ होंदी है। तो उत्थे भी ये धारणा है कि जे कोई बंदा उत्थे डिग पवे तो डिग पवे उन्होंने चुकदा भी कोई नहीं, डिग पवे तो लोग घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो जिहड़ा पैरों थल्ले आके दब के मर गया वो सीधा बहिश्त जाएगा, स्वर्ग जाएगा। धारणा इक्को जिहियां ही ने सारिਆਂ ਦੀਆਂ। इसलिए सानू गुरु साहब ने ऐसे स्वर्ग नरक तो दूर ही रखा। इसलिए कबीर साहब कहते मेरे लिए दोनों इक्को जिहे हैं, चाहे मैं मगहर विच मरदा ते चाहे मैं कांशी विच, मेरे लिए दोनों इक्को जिहे ने। कांशी मगहर सम विचारी। कबीर साहब कहते मैं दोनों नूं इक्को जिहा विचारिया, इक्को जिहा जानिया, दोनों जी मेरे लिए इक्को ही ने। ओछी भगत कैसे उतर सपारी। कबीर साहब कहते होशी भगती है लोगों की, होशी हौली, कि इन्हों अपनी भगती के उत्ते भरोसा ही नहीं, इन्हों अपनी बंदगी ते अपने परमात्मा ते यकीन ही नहीं है। हुण जिस परमात्मा का नाम रोज लैंदा होवे बंदा, रोज उहदा सिमरन करदा होवे, ते फिर भी उन्होंने डाउट होवे कि मैनू कांछी विच ही जाके मरना चाहिए, उत्थे मुक्त होऊंगा मैं,
कबीर साहब कहते होशी भगती है यह, कि होशी ना उन्होंने भगती विच यकीन, ना उन्होंने अपने परमेश्वर विच, क्योंकि जुड़िया तो उसे धारना नाल है कि आ करांगा तो मुक्त होवांगा, नहीं तो नहीं हुंदा। गुरु अर्जन देव महाराज इतिहास विच जिक्र आउंदा कि जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप लिखवाया जा रहा है, उस वक्त एक पोथी सिंगला दीप तो मंगाई गई, श्रीलंका तो सिंगला दीप तो एक पोथी मंगवाई गई जिन्होंने प्राण संगली कहते हैं। तो गुरु साहब दे हजूर उत्थे एक पंडित है, ब्राह्मण है, उन्हें कहा जी मैं लेके आना पोथी, मैनू इजाजत दो। गुरु साहब कहते भाई तू ले आ। वो कहना जी मैनू इजाजत देवो, मैं अपने पुत्र नूं भेजदा ते ये लैके आऊगा। गुरु साहब कहते ठीक है भाई जाओ, सवेरे जाओ। पंडित ने मुहूर्त चैक किया सब तो पहला, जिवें करदे ही ने कि सवेरे जाण दा मुहूर्त है या नहीं। उन्हें मुहूर्त देखा कि हाँ सवेरे जाण दा मुहूर्त है, कि सवेरे इस टाइम इन्ने टाइम तो इन्ने टाइम दे विच जाया जा सकता है। सवेरे जाण दी तैयारी कर ली, सवेरे सारा बंदोबस्त कर लिया, जो भी उन्हें वेद मंत्र पढ़ने सी, गायत्री मंत्र जो भी उहदा विश्वास सी उन्हें सब पढ़ लिया, सब कर लिया। उहदा पुत्र तुर पिया, जदों तुरिया हजे थोड़ी देर ही गया सी कि राह विच गधा दिस पिया उहनूं, अपशगन हो गया, वो वापस मुड़ आया। गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहंदे जी अज नहीं जा सकते। गुरु साहब ने कहा क्यों, अज क्यों नहीं जा सकते भाई? वो कहते जी अज नहीं जा सकते, अज बद शगन हो गया। क्यों? क्योंकि मोरे गधा टक्कर गया जी। गुरु साहब ने कहा फिर तुहाडे मुहूर्त कड्ढे दा की फायदा होया? क्योंकि तुसीं मुहूर्त कड्ढिया कि आ समा जाण दा ठीक है, कि सवेरे 9:30 तो 10 बजे दे विच विच जाना है, ना इस तो पहला ना इस तो बाद। सतगुरु कहंदे फिर मुहूर्त कड्ढे दा की फायदा होया तुहाडे नाल? तुसीं जिहड़ा वेद मंत्रां दा जाप कीता, तुसीं जो इत्थे राम राम करिया, उहदा की फायदा? उहदा लाभ की होया? तुहानूं ना अपने परमात्मा ते यकीन, ना तुहानूं वेदां दे उत्ते यकीन, ना तुहानूं अपने शास्त्रां दे उत्ते ग्रंथां ते यकीन, ना तुहानूं जिहड़ा है वो अपने आ मुहूर्त कड्ढे उत्ते यकीन। सतगुरु कहंदे भाई इहनूं अपने कोल ही रख, सानूं नहीं आ चाहीदा तेरा पखंड। सतगुरु ने गुरु साहब का सिख पैड़ा मुखा उन्होंने कहा कि भाई हुणे जाओ, वो उस वेले तुर पिया। उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि मैं पहले देख लवां कि जाण दा समा है कि दोपहर हो गई है, हुण दोपहर को कित्थे जावांगे, उस वेले चल पिया। इसलिए कबीर साहब यही गल समझा रहे। कबीर साहब कहंदे कि लोकां दी मनौत की है, लोग कहंदे कुछ होर ने ते करदे कुछ होर ने। जिहड़ा काम कर रहे ने उहदे विच ही यकीन नहीं है उन्हां नूं। अपने परमात्मा का नाम लैंदे ने, उहदी तपस्या करदे ने, उहदे विच यकीन नहीं है। फिर भी मन विच शंका है कि पता नहीं मुक्ति होवेगी कि नहीं होवेगी, पता नहीं कुछ हासिल होवेगा कि नहीं। हो सकता कई बारी तुहाडे नाल भी ऐसा बहुते लोकां नाल वापरदा है कि एक पासे वो खलो के अरदास करी जांदे ने, दूसरे पासे मन विच डाउट है कि पता नहीं अरदास सुनी जाएगी कि नहीं, इसलिए फिर किसी पंडित दे कोल भी हथ दिखाउंदे फिरदे ने, फिर किसी सो कॉल्ड बाबे दे कोल भी जांदे ने पुछण बड़ा कुछ, क्योंकि भरोसा ही नहीं है, एक थां ते टिका नहीं है। कबीर साहब कहते मैनू किसी नाल कोई लेना देना नहीं, कहते मेरे लिए कांछी ते मेरे लिए मगहर दोनों इको ही है। मैं कांछी मरा ते चाहे मगहर विच मरा, मैं कांछी जां मगहर दे उत्ते निर्भर नहीं करता कि मैं उत्थे मरांगा तो मुक्त होवांगा। वो कहते मेरी मुक्ति इन्हां थाहां नाल जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने उस वेले एक क्रांतिकारी कदम पुट्टिया। कबीर कहते जे कोई इहो जिहा बंदा ये मनता है ना कि वो मगहर विच रहेगा तो मुक्त नहीं होएगा,
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਸ਼ੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਸ਼ੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੁ ਗੁਰ ਗੱਜ शिव सब को जाने। गुर गज तो मतलब है गणेश। गज गज मतलब हाथी, ते हाथी दा मूँह किहदे ते लगा? गणेश दे। कह गुर गज शिव सब को जाने। कबीर साहब कहते सारी दुनिया जानती है। मगहर किहदी नगरी है? गणेश दी। कांछी किहदी नगरी है? शिव दी। शिव दी नगरी विच मरण नाल मुक्त हुंदा बंदा, ते गणेश दी नगरी विच मरण नाल बंदा नरक जांदा। हुण देख लो बड़ी अजीब जी गल है कि प्यो दे शहर विच मरोगे तो मुक्त होगे, पुत्र दे शहर विच मरोगे तो नरक जाओगे। कबीर साहब कहंदे कह गुर गज शिव सब को जानै, मुआ कबीर रमत श्री राम है। कबीर साहब कहते मैं इन्हां दोनों के पिछे उलझदा नहीं, क्योंकि कबीर मरिया तो परमात्मा दे विच लीन होया। कबीर मरिया तो परमेश्वर विच उस परमात्मा विच लीन होया। मुआ कबीर, कबीर मर गया, रमत श्री राम है, परमात्मा दे विच परमेश्वर विच रम गया कबीर। राम का मतलब ही जिहड़ा रमिया होया, तो उस रमे हुए राम दे विच, रमे हुए वाहिगुरू दे विच कबीर साहब कहते मैं रम गया। ख्याल रखना कि जिहड़ा जिउंदे जी ही परमात्मा दे विच रमिया होया, मरण तो बाद उहनूं किसे होर विच रमण दी लोड़ नहीं, उहनूं किते होर उलझण दी इधर उधर दे चक्कर दी लोड़ ही नहीं, क्योंकि जिउंदे जी ही परमात्मा दे विच लीन है। कबीर साहब दे मगहर दे स्थान ते जिथे उहनां दा स्थान है उहनूं कबीर नगर कहंदे ने। उस इलाके नूं मगहर दे विच उत्थे दो थां बने हुए ने, एक पासे कबर बनी है, एक पासे समाधि बनी है कबीर साहब दी। उत्थे भी यही धारणा है कि कबीर साहब दा शरीर नहीं मिलिया, उन्हां दी बॉडी नहीं मिली। इसलिए जेड़े, क्योंकि कबीर साहब के संबंध में हमेशा तो यह झगड़ा रहा कि कबीर हिंदू सी या मुसलमान, क्योंकि कबीर साहब के बहुत सारे शब्द जिहड़े ने वो इस्लाम नाल संबंधित मिलते हैं, बहुत सारे शब्द उन्होंने हिंदुओं नाल। पर ख्याल रखना कि दोनों में ही कबीर साहब का विश्वास नहीं है, ना उन्होंने हिंदुओं में विश्वास है, ना उन्होंने इस्लाम में विश्वास है। पर कबीर साहब के जान तो बाद यह रौला पिया कि कबीर मुसलमान सी या हिंदू। कबीर साहब की मां, कबीर साहब के पिता, ये बारे इतिहास में पता ही नहीं कि उन्होंने मां कौन सी ते पिता कौन सी, क्योंकि किसी ने लिखा कि कबीर साहब रस्ते विचों मिलिया सी नीरू नूं। नीरू कबीर साहब के पिता का नाम, कि नीरू नूं कबीर रस्ते दे विच मिलिया सी। किसी ने कहा कि कबीर दे पिता नदी के कंढे बैठे सन, तो किसी ने कबीर नूं जन्मदियां सार किसी भांडे विच जां छाबे विच रख के पानी विच रोड़ दिता सी, ते उत्थों कबीर साहब लभे सन। किसी ने लिखा कि कबीर एक कुआरी लड़की दे पेट तो पैदा होए सन, इसलिए उन्होंने प्रवान नहीं किया, उन्होंने कबीर साहब नूं झाड़ियां विच सुट दिता, ते नीरू की निगाह पई उस बच्चे दे उत्ते ते कबीर नूं चुक के लाए। इस तरह दी बहुत सारिया धारनावां ने कबीर साहब दे नाल संबंधित। ये तो सिर्फ 3 दसियां मैं। जो तुसी भगतमाल पढ़ोगे या होर जन्म साखियां पढ़ोगे कबीर साहब दियां, तो हैरान रह जाओगे कि बेअंत तरह दी घटनावां ने जिथों जिथों कबीर साहब दे मिलण दी गल आउंदी कि कबीर साहब इत्थों मिले, उन्हां नूं पानी विचों कढिया, वो किसी ने लिखिया कि आकाश तो डिगे, को बड़ियां धारनावां। पर उन्होंने माँ बाप बारे कोई नहीं दसदा। एक ये भी है कि कबीर साहब, क्योंकि हुण ब्राह्मण कहंदा कि कबीर नीच है, पर बाद में एक कहानी हो जोड़ी गई कि कबीर साहब ब्राह्मणी की कुख तो पैदा हुए सी, ब्राह्मणी की। हुण इत्थे कबीर साहब नूं हिंदुआं दे नाल जोड़न की कोशिश की जाती, इसलिए बड़े झमेले ने। क्योंकि जदों कोई भगत, कोई रब्बी रूह वो मनुखता नूं सच का संदेश दिंदी है ना, तो हर बरादरी,
हर बंदा चाहता है कि ये साडे नाल संबंधित होण, ये साडे विचों ने। जिउंदे दी भावें लोक उन्हां नूं प्रवान ना करन, पर मरण तो बाद कहंदे हाँ ये साडे विचों होए ने जी, ये साडे विचों होए। क्योंकि उन्हां नूं अपने नाल जोड़ के अपने आप नूं उच्चा करना हुंदा बंदे ने कि मैं फलानी बरादरी विचों हाँ, मैं कबीर साहब की बरादरी चों, इसलिए अपने आप को उच्चा करना चाहता होंगे बंदा। इस करके उन्होंने जान तो बाद उन्होंने अपने आप नाल जोड़ लेंदा। इस तरह गुरु नानक साहब नाल कीता बामण ने कि गुरु नानक साहब जी साडे लव कुश दी वंश विचों होए ने। जिउंदे जी कबीर साहब गुरु नानक साहब महाराज नूं निंददा रहा बामण, पर उन्होंने जान तो बाद कि जी साडी वंश विचों होए। इस तरह कहानियां जोड़ लियां जांदियां बाद विच। रविदास जी सारी जिंदगी उन्होंने निंदिया गया कि नीच है, शूदर है, पर जदों वो चले गए दुनिया तो फिर कहानी घड़ ली गई कि पिछले जन्म विच ब्राह्मण सी रविदास, पिछले जन्म विच। इस करके उन्होंने किसी शूदर के घरों मंग के खा लिया सी, भीख मंग ली, भिक्षा मंग ली सी, इस करके शराप मिलिया उन्होंने, तां वो शूदर बने। फिर भी अपने नाल ही जोड़िया कि पिछले जन्म विच ब्राह्मण सी। ब्राह्मण बड़ा चलाक आदमी है। ये इस तरह दी बहुत सारिया कहानियां घड़ना, ये किसी को कतल नहीं करता, ये चेते रखना। ये मुसलमानों वांगू तत्तियां तवियां ते नहीं बिठाउंदा, ये बंद बंद नहीं कटदा, ये कहानियां घड़दा है, ये कहानियां घड़दा है। ये कहानियां घड़ने विच बड़ा एक्सपर्ट आदमी है। इसलिए जिन्ने भी भगत गुरमुख साधु होए उन्हां सारियां नाल बहुत सारियां कहानियां जोड़ दित्तियां जांदियां, क्योंकि कहानी हौली 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 सीने बसीने लोग उन्हें सच मान लेंदे ने, लोग उन्हें सच मान लेंदे ने। क्योंकि यह कतल करने का एक ज्यादा वधिया तरीका है खत्म करने का किसी को, कहानी कि कुछ ऐसी कहानी कर लो कि लोग उन्हें सच मान लैण। जिवें मैं दस्सिया कि मगहर दे लोग की मानते हैं, मगहर दे लोग मानते हैं कि कबीर साहब मगहर विच इस करके आए क्योंकि इत्थे काल पैंदा सी, जबकि कबीर साहब की बाणी कुछ होर कहंदी है। इसलिए कहानियां कुछ होर हुंदियां ते सच्चाई कुछ होर हुंदी है। इन्हां चक्करां विच नहीं पैना, जो गुरबाणी दे विच लिखिआ है उहदे मुताबिक ही आपां समझना ते जानना है, क्योंकि साडे कोल इस तो बिना कोई होर वधिया कोई ढंग नहीं है। गुरबाणी ही इक्को एक साडे कोल प्रमाण है, उहदे राहीं असीं सेध लैणी है। भगत साहिबान ने, गुरु साहिबान ने सानू गुरबाणी दा खजाना बख्शिया, इसलिए बाकी सब चीज़ां छड्ड के गुरबाणी तो ही सेध लैके असीं अपने जीवन नूं सवारना है। होईयां बेअंत भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।